Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So in this video series, we have been discussing multiple choice questions on Indian polity. So let us continue in the series और आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल सिस्टम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे जिसमें हम इंडिया के जुडिशरी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. The presiding officer or न्यायाधिकारी for a gram न्यायालय is appointed by whom? Options are A. Chief Justice of concerned High Court, B. Governor in consultation with the concerned High Court, C. State government in consultation with the concerned High Court, or D. District Judge. तो जो ग्राम न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधिकारी होते हैं, how are they appointed? You have to choose the correct answer. Yes, who appoints such न्यायाधिकारीज or junior judges? So see, the correct answer here is C. State government in consultation with the concerned high court. उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन में ये सारे ग्राम न्यायालय जो है इनके न्यायाधिकारी को अपॉइंट करती है. So the Gram Nyayalayas Act 2008 has been enacted to provide for the establishment of Gram Nyayalayas at the grassroots level for the purpose of providing access to justice to the citizens. तो ये एक्ट बनाया गया था ताकि ग्राम न्यायालय बन सके. These are the courts of judicial magistrate of the first class और इसमें जो presiding officer होगा they are appointed by the state government after consulting the concerned state high court. तो ये आपका C answer is the correct answer. Then second question, consider the following statements. Number 1, the president can appoint a judge of a high court as an acting chief justice when the office of chief justice of high court is vacant. Second, the newly created union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh will have a common high court. You have to select the correct statement. One only, two only, both, or none of these. Yes, try to answer the question. सो लेट अस सी. पहली स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ऑफिस वेकेंट हो. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड, जो नई यूटीज बनी है जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, दे हैव अ कॉमन हाई कोर्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. बोथ ऑफ दिस इज द correct, both of these are correct statements. So President of India in exercise of the power conferred by Article 223 of the Constitution ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं. एंड एज पर द सेम आर्टिकल, आर्टिकल 223, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट. यस, सो वी हैव डिस्कस दिस. तो ऐसा करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास. ये पॉइंट आपको याद रखना है. जनरली इसमें स्टेटमेंट 1 में जो कंफ्यूजन होती है दैट इज वेदर हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट इज डन बाय गवर्नर और नॉट. नो, इवन द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये बात आपने याद रखनी है. हाँ, इन सम केसेस इट मे हैपन दैट द जजेस मे बी एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द गवर्नर, but that doesn't mean that the appointing power also goes to the governor. The appointing power always lies with the president. तीसरा क्वेश्चन, which among the following statements is correct regarding curative petition? Curative petition के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Number 1, the concept of curative petition is supported by Article 137 of the Indian Constitution. Okay, तो ये बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है. अगर आपको आर्टिकल पता है तो या तो पता होगा या फिर नहीं पता होगा. देयर इज नो थर्ड वे. Second statement, such a petition needs to be led within 30 days from the date of judgment or order. Third, it may be filed after a review plea against the final conviction is dismissed. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है. पहले किसी केस में जजमेंट आ जाती है, उसके बाद उस जजमेंट को चैलेंज किया जाता है रिव्यू पिटीशन में, यानी कि उस जजमेंट का रिव्यू लिया जाता है. उस जजमेंट को रिव्यू कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट में ही, बिकॉज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो कोर्ट
दैट इज अबव द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू कराया जाता है, विच इज नोन एज अ रिव्यू पिटीशन। अब मान लीजिए रिव्यू पिटीशन के बाद भी अगर आपको अपना फेवरेबल डिसीजन नहीं मिलता और अगर आप ये प्रूव कर पाओ दैट सम एरर ऑफ जजमेंट हैज हैपेंड, आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाओ, देन यू कैन ऑल्सो फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब जजमेंट के बाद रिव्यू के बाद भी एक मौका होता है विच इज कॉल्ड अ क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 137 में मेंशन्ड है, इसको 30 दिन के अंदर अंदर सेंड करना होता है, करेक्ट, एंड इट मे बी फाइल्ड आफ्टर ए रिव्यू प्ली इज डिसमिस्ड। तो रिव्यू के बाद ही फाइल होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें एक पर्टिकुलर केस है जो आपको याद रखना है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये पर्टिकुलर केस है जो कि रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड है। सो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, आर्टिकल 137 में क्यूरेटिव पिटीशन मेंशन्ड है और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स या लॉ जो कि आर्टिकल 145 के तहत बने हुए हैं उनके अगेंस्ट पहले रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी, देन जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो 30 दिन के अंदर अंदर डाली जाएगी आफ्टर द जजमेंट। कौन सी जजमेंट? रिव्यू पिटीशन की जजमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर ये डाली जाएगी। सो all the statements are actually correct here. Question number 4. Consider the following statements. Under Article 32, the Supreme Court has power to issue writs for the enforcement of any of the fundamental and legal rights of citizens only. Second, the High Court cannot issue writs to any authority outside its territorial jurisdiction. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपने बताना है, गलत कौन सी है, 1, 2, बोथ और नन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स की पावर है, ये सबको पता है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन आर्टिकल। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये आर्टिकल ही आपको पता ना हो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In fact, Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as the soul of the Constitution. So, we should know what is there under Article 32. तो देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। नंबर 1, अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट, एंड लीगल राइट्स, नो, द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू इशू रिट्स डायरेक्टली अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट डायरेक्टली रिट इशू कर सकता है, ऑफ सिटीजन्स ओनली। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत, क्योंकि लीगल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन इशू नहीं कर सकता। ये पावर दी गई है हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी कर सकता है, ऑर्डिनरी लीगल राइट के अगेंस्ट भी रिट इशू कर सकता है। सो देखिए, जब बात आती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, तब सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, इट एक्सटेंड्स टू द एंटायर इंडिया। लेकिन जब बात आती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की, स्पेशली इन रिट पिटीशंस, तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की कम होती है। यानी कि हाई कोर्ट में आप किसी भी मैटर के रिगार्डिंग रिट पिटीशन डाल सकते हैं, इवन इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड एंड इवन इफ योर ऑर्डिनरी लीगल राइट इज वायलेटेड, यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन इन अ हाई कोर्ट। बट इफ यू वांट टू फाइल अ रिट डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको वो सिर्फ फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए ही डालनी पड़ेगी। यू कैनॉट appeal for a legal right. Second statement, the High Court cannot issue writs to any authority outside its territorial jurisdiction. ये statement भी गलत है। हाई कोर्ट अपनी territorial jurisdiction से बाहर भी writ issue कर सकती है, provided the cause of action arises in its jurisdiction. कॉज ऑफ एक्शन उसकी जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है दैट इज द स्टेट ऑफ पंजाब, द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़। तो अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन इन तीनों जगह में अराइज हुआ है, लेकिन जो जिसके खिलाफ रिट इशू की जानी है दैट इज सिटिंग इन से केरला, तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर अराइज हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, जो इशू हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। सो
सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ओके, तो आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, और एनी अदर राइट्स जो है उसके लिए हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है. द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट ऐसी इशू कर सकता है जो कि उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाती हो, प्रोवाइडेड द cause of action arises within its territorial jurisdiction. So that we have already discussed. The next, fifth question. Consider the following statements. Number one, only a person who has been a judge of any high court in India can be appointed as a judge of Supreme Court. Second, there are no grounds provided under the Constitution for removal of a Supreme Court judge. Select the correct statement. कौन सी statement इनमें से correct है? One only, two only, both और none of these. एक एक करके देखते हैं. नंबर वन, ओनली अ पर्सन हु हैज बीन अ जज. देखिए ओनली वर्ड है. ओनली अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यहां पर अगर ओनली ना होता तो ये स्टेटमेंट सही होती. अब ये स्टेटमेंट हो गई गलत. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ वही इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज रहा हो. नो, देयर आर अदर क्राइटेरिया एज वेल. अगर वो इंसान एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तब भी वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का. या अगर वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा हो इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है. तो सिर्फ एक यही क्राइटेरिया नहीं है, टू मोर क्राइटेरियाज आर देयर. अगर यहाँ पर लिखा होता अ पर्सन, ओनली अगर वर्ड ना होता, अ पर्सन हु हैज बीन अ हाई कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज, यस ही कैन बी, लेकिन ओनली वर्ड ने ये पूरी स्टेटमेंट गलत कर दी. Second, there are no grounds provided under the Constitution for removal of a Supreme Court judge. ये स्टेटमेंट भी गलत है. देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, अंडर दिस एक्ट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इज डिस्क्राइब्ड. कि उनको रिमूव कैसे किया जाएगा. बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. बेसिकली पहले पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो 100 MPs उसे सपोर्ट करें, राज्यसभा में किया जा रहा है तो 50 MPs सपोर्ट करें. फिर वो इनिशिएशन जो है उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजी जाएगी. अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो फिर उस पर वोटिंग होगी. वोटिंग अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो, फिर वहाँ पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगी. उस इंक्वायरी कमीशन में 3 लोग होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ये तीनों इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जज पे जो भी एलिगेशंस हैं वो करेक्ट है या नहीं. फिर उनकी रिपोर्ट, अगर उनकी रिपोर्ट में कन्विक्शन आती है, सिर्फ तब नेक्स्ट हाउस उस पर वोटिंग करेगा. और अगर वो हाउस भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देता है, देन द रेजोल्यूशन विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट साइंस इट द जज इज रिमूव्ड. तो ये पूरा प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर इस एक्ट में लिखा हुआ है. नाउ वी मे गेट कन्फ्यूज्ड कि अगर प्रोसीजर सारा इस एक्ट में लिखा है तो मे बी ग्राउंड्स भी इसी एक्ट में मेंशन्ड होंगे. बट नो, द ग्राउंड्स आर एक्चुअली मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नो ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ग्राउंड्स है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया कि कोई भी जज जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी करता है उसे हटाया जा सकता है बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट. बस ये एक लाइन लिख के छोड़ दिया. अब उसकी डिटेल क्या है वो इस एक्ट में लिखी हुई है. तो ग्राउंड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सिर्फ एक प्रोसीजर जो है डिटेल्ड प्रोसीजर दैट इज मेंशन्ड अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी नन ऑफ दीज. Right? So none of these statements is correct. Question number 6. With reference to Lok Adalat, consider the following statements. Lok Adalat पे question है. Number 1, it is a component of alternate dispute resolution or ADR. Okay. Second, it has a constitutional status. Third, it deals only with civil matters. इनमें से incorrect statement आपने choose करनी है. 2 only, 1 and 2, 2 and 3, none of the above. लोक अदालत के बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ADR.
ADR का मतलब होता है कि यूजुअल कोर्ट प्रोसेस को बाईपास करके आप ऑल्टरनेट तरीकों से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो, जैसे कि मीडिएशन, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ये सारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके हैं। और इसी में एक तरीका आता है लोक अदालत का। सो यस, इट इज करेक्ट। इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नो। लोक अदालत स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये एक लॉ पास करके उसके अंडर क्रिएट किए गए हैं अंडर द लोक अदालत एक्ट, तो संवैधानिक दर्जा नहीं है इनके पास। थर्ड, इट डील्स ओनली विद सिविल मैटर्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये बहुत डाइवर्स मैटर्स से डील करते हैं, तो आपका आंसर इसमें पूछा है इनकरेक्ट। सो 2 and 3 इज योर आंसर। सी 2 and 3 इज द आंसर। तो लोक अदालत जो है ये ADR का एक तरीका है। इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। सो नॉट द लोक अदालत एक्ट, इट इज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसके अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज भी क्रिएट की गई है। और लोक अदालत बहुत डाइवर्स मैटर से डील करती है, ना कि सिर्फ सिविल मैटर्स से, जैसे कि मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट्स, इवन क्रिमिनल मैटर्स जो कि कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल यानी कि जिनमें कॉम्प्रोमाइज करना अलाउड होता है बिटवीन द पार्टीज, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस एटसेट्रा, इन सभी मैटर्स को लोक अदालत की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लाया जा सकता है। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज, सम ट्वीट्स अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, द जुडिशरी, काफ़ी ये न्यूज़ में रहा है। सो लेट अस सी, नंबर 1, the judiciary has the power to punish for its contempt in India. Second, the word contempt of court has been mentioned in the constitution. आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। Which of these is a correct statement? So there was a very senior advocate in Supreme Court, Mr. Abhishek Manu Singhvi. Against him, the contempt of court case was filed, and he was convicted. Was fined 1 rupee for the contempt of court as a symbolic जेस्चर। तो जुडिशरी हैज़ द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा किया गया है। तो आपको करंट अफेयर से ये एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। सेकंड, द वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है? अब अगर आपने फंडामेंटल राइट्स ध्यान से पढ़े हैं तो आपने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ज़रूर पढ़ा होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसी के साथ है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जिसमें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लिखी हुई हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के। और उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन है, इट शुड नॉट कॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टर्म जो है वो मैंशनड है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। सी इज योर आंसर। तो जुडिशरी पनिश भी कर सकती है और ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन है, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, इसका रीजन है द हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव टू एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यू हैव टू टेल। A is correct, but R is the explanation of A. A is correct, but R is not the explanation of A. A is correct, R is incorrect. Both A and R are incorrect. So you have to choose from A, B, C, D. देखिए, assertion में है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट को सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की प्रोविजन है, ऐसी प्रोविजन हाई कोर्ट में नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें एमिनेंट ज्यूरिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट को डायरेक्टली हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता। ऑन द अदर हैंड, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट कैन बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड, उसका रीजन क्या दिया है? द हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव टू एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 के तहत द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड लॉ।
तो प्रेसिडेंट जब भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। हालांकि वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती। तो क्या ये कारण है कि हाई कोर्ट में एमिनेंट ज्यूरिस्ट को अपॉइंट नहीं किया जाता? बिकॉज हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव दैट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसका ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। मतलब आर करेक्ट है, दैट हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव दिस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन ये ए का करेक्ट आंसर नहीं है। सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आर अपने आप में करेक्ट है, हाई कोर्ट्स के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। हाई कोर्ट्स एडवाइस नहीं दे सकते प्रेसिडेंट को, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। लेकिन ये कारण नहीं है वहां पे एमिनेंट ज्यूरिस्ट को नॉमिनेट ना करने का। कारण ये है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो सबसे बड़ी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और एमिनेंट ज्यूरिस्ट को वहां पर भेजने का पर्पस ये है कि अलग अलग फील्ड से लोग वहां पर जाएं जिन्होंने कभी लॉ शायद प्रैक्टिस भी ना किया हो, बट दे आर एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो उनकी एक्सपर्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में काम आए। दैट इज द रीजन वाई नो सच पर्सन इज नॉमिनेटेड टू द हाई कोर्ट बट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर रीजन जो है वो गलत है। अपने आप में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैरेक्टराइजेज जुडिशियल ओवररीच एज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू? इसमें से जुडिशियल ओवररीच की एग्जांपल आप किसे कह सकते हैं? ए, ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन। बी, जुडिशरी पासिंग ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। C, judiciary nullifying a parliamentary law that was passed by due procedure, and D, all of the above. Judicial overreach इसमें से किस में दिख रही है? So there are 3 organs: legislature, executive and judiciary. Legislature, executive, judiciary 3 organs होते हैं स्टेट के। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है इन दोनों पे चेक रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें। तो जब भी जुडिशरी लॉ बनाने की कोशिश करती है या लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल जुडिशियल ओवररीच, यानी कि द ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन। सो जुडिशियल ओवररीच हो जाएगी आपकी ये वाली, नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, जुडिशरी पासिंग ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये आपकी एग्जांपल हो जाएगी जुडिशियल एक्टिविज्म की, कि जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट काम कर रही है। जुडिशरी ऑर्डर्स पास कर रही है किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज पे, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी इज एक्टिव। जुडिशरी नलिफाइंग अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वाज पास्ड बाय ड्यू प्रोसीजर, ये एग्जांपल हो जाती है आपकी जुडिशियल रिव्यू की। कोई भी लॉ पास होने के बाद जुडिशरी के पास जाता है रिव्यू होने के लिए। जुडिशरी देन चेक्स इट एट द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है वो पर्टिकुलर लॉ। अगर कर रहा है तो वो लॉ नलिफाई कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर रहा है देन द लॉ विल बी पास्ड। पास तो वो हो चुका है, देन इट विल सस्टेन। तो ये तीनों की ये डेफिनेशंस है, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। देन क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, with reference to the impeachment process of Chief Justice of India in Lok Sabha, consider the following statements. अब I have actually already explained to you this, तो एक क्वेश्चन के आंसर में मैं ऑलरेडी आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। So now let us see. Number 1, for the consideration of such a motion in Lok Sabha, at least 100 members must sign the motion, as I told you, yes. B, the speaker can either accept or reject a motion suggested by the members of the house, ये भी correct है। Third, if the motion is admitted, the parliamentary committee on privileges investigates the charges against the CJI. देखिए, इन्वेस्टिगेशन जरूर होती है लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन प्रिविलेजेस नहीं करती, वो एक जुडिशियल कमिटी करती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, 3 मेंबर्स की कमिटी होती है। सो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन प्रिविलेजेस नहीं करती वो इन्वेस्टिगेशन, वो जुडिशियल कमिटी करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ, द मोशन नीड्स टू बी पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एब्सोल्यूट नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी इन द लोकसभा।
Special majority means the majority of 2/3 of members present and voting and the majority of total strength of the house. Absolute majority होती है the majority of total strength of the house. तो ये इसमें फ़र्क आ जाएगा. So option 1 and 2 is correct. इसमें पूछा गया है आपको. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. सो 1 and 2 आर करेक्ट. ए इज़ योर आंसर. तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने पहले ही आपको एक आंसर में एक्सप्लेन कर दिया था. सो दैट इज़ योर आंसर. सो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. पहले वो दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस होगा. लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में 50. फिर स्पीकर या चेयरपर्सन उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. फिर एक कमेटी बनाई जाएगी. फिर पहले हाउस में वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में वोटिंग होगी. फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाएगा एंड फाइनली इट विल बी पास्ड एंड द जज विल बी रिमूव्ड. इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर इस पूरे के दौरान जज कभी भी रिज़ाइन कर जाए तो वो मोशन वहीं पे ड्रॉप हो जाता है. लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि इसे ठीक किया जाए, बट इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर इट विल बी करेक्टेड और नॉट. तो ऐसे आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है. सो वी डू नॉट हैव एनी प्रेसिडेंट, राइट. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द जुडिशरी. आई होप अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो आपको कुछ रिविजन हुई होगी. एंड इफ यू फाउंड दिस यूजफुल एंड यू वांट टू ट्राई मोर सच क्वेश्चंस, डू जॉइन आवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं जिनसे आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट सर्विसेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं. इन एनी केस यू कैन सब्सक्राइब टू अवर डेली कार्पे डीएम, जिसमें कि डेली आपको न्यूज़ आर्टिकल सारे के सारे आपके मेल पे मिल जाएंगे विच यू कैन comfortably study. So if you like it, please let me know in the comment section. Thank you and have a nice day.